بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، اہل سخن، اہل ذوق حضرات کے لیے آج نثری نظم، جس طرح سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی نثری نظم جو آزاد نظم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی میرے احباب ذی وقار، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ علم عروض، بحور وغیرہ، اور اس پہ بھی اگر آپ لکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اس کے بھی اوزان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بحر پر بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن نثری نظم نثر کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا اپنا ہی عروض ہوتا ہے، اور اس میں وہ عروض نہیں ہوتا جو غزل اور قطعات رباعیات میں بندش کے طور پر ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا، جس طرح سے میری ایک آپ نے آزاد نظم سنی ہوگی، شاید کہ یوٹیوب پر، شاید کہ نہ ہی سنی ہو، تو میں آج آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ جو نیا جو سال آیا ہے، دسمبر جا چکا ہے، زندگی برفاب ہے ویسے کی ویسے ہی۔ دسمبر جا چکا ہے، زندگی برفاب ہے ویسے کی ویسے ہی۔ ٹھٹھرتی آرزوؤں کی نجھرتی نیل گوں نبضیں، تیرے آنے کی گرما گرم خوشخبری کے ملنے کی تمنا میں قریب مرگ ہیں گویا۔ یہ پچھلا سال کس مشکل سے گزرا ہے، یہ پچھلا سال کس مشکل سے گزرا ہے، تمہیں اے دوست اس سے کیا؟ تمہارے یک بہ یک بے مہر ہونے سے، زرے احساس، سوز آرزو سے، درد مندی سے، سراسر آری ہونے سے، میری دنیا کی گردش رک چکی ہے، میری دنیا کی گردش رک چکی ہے، اور پتھرائی ہوئی نظریں تمہاری راہ تکتی ہیں۔ بہاریں پھر پلٹ آئیں، بہاریں پھر پلٹ آئیں، دسمبر جا چکا ہے، زندگی برفاب ہے ویسے کی ویسے ہی۔ یہ ہے جی، گلا بھی یہی ہے اور اس کا اوزان بھی یہی ہے جو میں آپ کو آج میں نے اپنے ہی کلام میں سے، دسمبر جا چکا ہے، اپنی کتاب میں سے میں نے آپ کو کلام پیش کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اوزان کون سا ہے۔ بھائی اگر آپ نے نثری نظم یعنی کہ آزاد نظم لکھنا چاہیں تب لکھیں، لیکن اس کا اوزان جو ہے نا وہ گلے سے خود ادائیگی میں آپ ہی اس کو استعمال کریں کہ ادائیگی اس کی کیسے ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر اوزان پہ مفعیلن پہ یا مفعیلن یا مفعولن یا فاعلن یا مفعولات یا مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن، اس پہ اگر آپ اس کو گرداننا چاہتے ہیں اور ناپنا چاہتے ہیں تو بھائی اس میں کوئی کبات بھی نہیں ہے، آپ بالکل ناپ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ادائیگی والی، میں نے آپ کو پہلے گلے کی بات کی تھی، یہ تمام اوزان جو ہے نا یہ گلے پر ہیں۔ دیکھیں میں نے کس طرح سے آپ کو ادائیگی کر کے بتا دیا۔ اب میں ایک کتاب لیتا ہوں جی، یہ ہے قوس قزح کی زنجیریں، یہ اس کی شاعرہ ہے جی ایم زیڈ کنول، اور ان کی ایک آزاد نظم میں آپ کو سنا لیتا ہوں۔ قوس قزح کی زنجیریں، فطرت کے اجیارے رنگوں کی غربت میں نے لکھنا سیکھا تو سب طائر میرے لفظوں کو سن سن کر چہکا کرتے تھے، ان کی اس چہکار پہ سب اشجار بھی مہکا کرتے تھے، جھومتے جھومتے خوشبو کی باہوں میں جھولا کرتے تھے، پھر ان خوشبو کے آنگن میں خوشبوئیں یوں در آئیں کہ ہر سو دھرتی کے مخمل میں خوشبوئیں ہی اگنے لگیں، سب اپنے پرائے خوشبو کے دامن میں بسیرا کرنے لگے۔ پھر ایسا ہوا اس خوشبو کو جب قزاقوں نے لوٹ لیا،
वो बुग़्ज़ व अदावत, मक्र वरिया के फूल उगाने आए थे। मेरे लफ्जों ने उन फूलों को एक आन में आकर नोच लिया। अब मैं हूं और खुशबुएं हैं, अब मैं हूं और खुशबुएं हैं। उल्फत के मिज़राब पे गाती कौसो कज़ा की जंजीरों में ख्वाबों की ताबीरें हैं, ख्वाबों की ताबीरें हैं। ये आपने सुन ली ना। तो बात यही है कि आप बताएं इसमें कौन सा औज़ान आप की बात करेंगे। बेहतर है कि आप आज़ाद नज़में लिखें, लेकिन इसमें कोई ये नहीं कि आप आज़ाद नज़मों पे भी किसी बहर पे कोई बात करें ना करें, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने अंदाज को अच्छा करें। अंदाज बयां, ये है अपनी आज़ाद शायरी में अंदाज बयां। और इसका लिखने का तरीका बेहतर है कि आप कोई आज़ाद नज़मों वाली नसरी शायरी और आज़ाद शायरी की एक दो किताबें आप आज़ाद शायरी की खरीद लें और फिर उसको पढ़ें, फिर उसमें से समझें कि ये क्या क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है, फिर आपको समझ आ जाएगी। इस पे कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह कि औज़ान जो है ना, फ़ाइलन फ़ऊलन, ये गज़ल में जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मुस्तमिल हैं। और आज़ाद नज़मों में कमो बेश यानी कि इंतहा की कमो बेश के साथ ही जिंदगी का मेला है, ख्वाहिशों का रेला है। ये भी एमजेड कवल की एक आज़ाद नज़्म है। बात ये पते की है, उनकी नज़्म का नाम है। तो वो लिखती हैं कि जिंदगी का मेला है, ख्वाहिशों का रेला है, बात ये पत्ते की है, हर नफ्स अकेला है, जंगलों में तायर भी दूर आसमानों में बेगुमान उड़ते हैं, जंगलों का सन्नाटा अपने ज़ात का नाता बेकली से करता है, हाय उसकी तन्हाई हर शजर ही रोता है, हाय उसकी तन्हाई हर शजर ही रोता है, फिर भी हर शजर तन्हा एक शजर ही रहता है। जंगलों के आंगन में मैं खाक ही उगाता हूँ, बारिशों के मौसम में आग ही बहाता हूँ, बात ये पत्ते की है, हर शजर अकेला है फिर भी सांस लेता है, आरज़ू की हस्ती की बेगुमान बस्ती की आबरू बढ़ाता है, अपना दिल दुखाता है, चार सू ही पेड़ों पर जो भी आशियाने हैं, अपने आशियानों का ज़र्फ आजमाता है, बेनवा परिंदों को तीरगी के लम्हों में रास्ता दिखाता है, अपना दिल जलाकर भी जुगनुओं की संगत में, तितलियों की कुर्बत में रोशनी को मंजिल का रास्ता बताता है, बात ये पते की है, हर शजर अकेला है फिर भी उसके दामन में रोशनी का मेला है, फिर भी उसके दामन में रोशनी का मेला है। इसी तरह से आप कोई भी लिखना चाहें आज़ाद नज़्म तो कोई मसला नहीं होगी, आप लिख सकते हैं। और ये देखें, ये एक नमूना, दो नमूने, मैंने तीन नमूने बल्कि पेश किए और ये एक नमूना और अजीब सा पेश कर रहा हूँ। ये आप देखिएगा, सुनिएगा कि देर हो गई। ये भी आज़ाद नज़्म नसरी नज़्म है और इसका भी आप अंदाज़ा लगा लें, सुन लें। मेरे मोहतरम उल मकाम वाजिब उल एहतराम जनाब इल्म अरूज़ वाले वो दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से सरापा सिपास हूँ और ताउन करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और मैं हर पल दिल से दुआ करता हूँ, क्योंकि जो ज़ुबान पर जहन पर लिखे होते हैं उनके लिए तो दुआ वैसे जो याद करा देते हैं कर लेते हैं, जो लोग एहसान करते हैं वो दिल पे लिखे जाते हैं, जो दिल पे लिखे जाते हैं उनके लिए दिल से दुआ निकलती रहती है, होती रहती है, वो खुद ब खुद दुआ आ जाती है, उसे कहने की जरूरत नहीं कि आप दुआ करें मेरे लिए। आ गई को मेरे जहल से मिलने का बहुत शौक था, मैंने उसे बहरा समझाया
भली मानस रेल की पटरियां साथ साथ तो चल सकती हैं, मिल नहीं सकती, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। जाने आज इतनी बागी क्यों हो गई, जाने आज इतनी बागी क्यों हो गई थी, वरना तो उसके बरहन के आगे सरे तस्लीम करना सीखा था। मैं समझ ना सकी। यकायक मुझे दस्तक सुनाई दी, अरे ये तो जनून है। लेकिन नहीं नहीं, ये जरूर मेरा वहम है। भला उसका मेरे आंगन में क्या काम। अभी मैं इसी नई इफ्ताद से संभलने न पाई थी कि मेरी दोस्त खिरद ने मुझे इशारा किया। वो हमेशा से तमाम गुत्थियां सुलझाने की आदी थी। ये बताएं आपको ये नसरी नज़्म कैसी लग रही है। ये भी एमजेड कवल की है। हाँ, जो दिसंबर जा चुका है मैंने सुनाई थी वो मेरी थी। और इसी वीडियो के साथ मैं बात ताकि आप मेरी वीडियो भी देख सकें और तमाम अहबाब। और फनी व्लॉग इसीलिए बनाता हूं कि आजकल आपने समझ गए होंगे ये बिलखसूस सिर्फ एक ही दोस्त, दो चार दोस्त हैं हुए जो इससे ज़ौक़ रखते हैं, अहले ज़ौक़ जो सुखन से ज़ौक़ रखते हैं। ये उनके लिए मैंने आज ये अपना जो है ना महफिल तन्हाई, महफिल सुखन, यानी तनहा बैठकर सिर्फ स्क्रीन पर, क्योंकि आपके मैं सामने नहीं हूं ना आप मेरे सामने हैं, लेकिन बात यह है कि हम आपके सामने हैं, आप मेरे सामने हैं। मैं आपके सामने हूं, वो भी स्क्रीन में, और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिल में हूं और आप मेरे दिल में हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए और हमारा साथ दीजिएगा। क्योंकि बात यह है कि शायर होता है खुददार, और खुददार जो शायर होता है ना उसको जो ये खुद ही पालनी होती है ना, खुद ही को पानी देना होता है, खुद ही कोई जो ग़िज़ा है ना वो यही है कि उसको खुददार रहते हुए भी कोशिश करनी पड़ती है कि चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं वो कर लूँगा, लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। बात वही है कि मेरे पास 3-4 दिन से पहले, बल्कि हफ्ता 15 दिन में पहले मैंने कहा था कि मोबाइल नहीं था। मैंने मोबाइल लेने के लिए कोशिश की थी, लेकिन मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह आज कल से मिल गया है। टेक्नो का है और 332 रैम मेमोरी है इसकी, लेकिन वो है भी यूज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम तो थोड़ा बहुत तो करता रहेगा ना। बाकी बात वही है कि नया मोबाइल तो भाई दोस्त कहते हैं अक्सर कि जी आप नया मोबाइल ले लें, डब्बे बंद ले लें। मैंने कहा हाँ जी लूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा, जब कुछ बन जाएगा तो फिर ले लूँगा। ये कौन सा मसला है। बात ये यहाँ तक ठहरी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि व्लॉग्स, सॉन्ग्स ये फनी आजकल इसीलिए करता हूँ, वगरना मुझे जेब नहीं देते। मुझे भी अंदर से आवाज़ आती है, काफ़ी आवाज़ आती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, इतनी अरसा तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आज इस उम्र में और इस अंदाज में और इस लिहाज से ये आपको क्या करना पड़ा। फिर सोचता हूँ यार अपने लिए तो वो किया, लेकिन आज किसी के लिए कुछ करना पड़े तो मुझे क्या, कौन सी कबात है इसमें। किसी के लिए कर रहा हूँ ना, तो पता नहीं किसी के लिए किस किस के लिए कर रहा हूँ, ये मैं जानूँ, मेरा अल्लाह जाने। बाकी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए, दुआओं में याद कीजिएगा हमराज उचवी को, और आगे भी अब मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि कम से कम मेरे 5000 सब्सक्राइबर भी नहीं बने, इतने अरसा हो गया, और व्यूज़ तो आते हैं कमाल के, और सब्सक्राइबर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2500 हैं, लेकिन व्यूज़ कितने आते हैं 50-60, 34, 35, 70, कभी कभार 120 या 125। किसी वीडियो पे 700 पे जा चुकी होती है, कोई वीडियो जाती है केबी में, और कोई केबी में, लेकिन फनी जा रही है केबी में। बात वही है ना, इसीलिए कह रहा हूँ
کہ اب دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو KB میں کون پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو بندہ نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. آپ نے ولاگ بھی آج کا دیکھا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ، سلامت رہیے. دیجیے اجازت ہمراز اچوی کو. ہمراز جنہوں نے میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو وہ خالی نہ جائیں. بہت مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی اگر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن والی بٹن کو جو ہے نا، ٹلی کو جو ہے نا وہ کھٹکھٹاتے جائیں تاکہ جو ہے نا مجھے پتہ چلے، میں بھی سن سکوں. تو بھائی اللہ پاک، میں اس کی بات عیاں نہیں کرتا، اللہ پاک آپ کو اجر دے گا. اس میرے چینل میں سے بھی پتہ نہیں کتنا اجر دے گا، وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. آپ جو جانتے ہیں وہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اندر جو ہے نا، ہر کوئی اپنے اندر کا عارف خود ہے، اور اسی طرح سے اللہ ہی جانے یا وہ بندہ ہی جانے. اسی لیے میں کہتا ہوں میں جانوں میرا اللہ جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.